Great. Welcome everyone to today's open mic session. And as you guys are aware, open mics are about discussing three challenges of three different people. And all of you here have already been a part of these discussions. So we'll just begin the call. Natasha, we'll start with you. You had something to speak about. Over to you. Okay. So, I have this issue wherein I don't tend to last in any organization beyond 6 or 7 months. मतलब ऐसा नहीं कि the organization throws me out. I only get out of that place. And this has been the case now for some time, like three, four. The weird thing is, I easily get the interviews, I easily crack interviews, I easily get the job. But when it comes to sustaining, over a certain period of time, I always tend to break some, कुछ ना कुछ हो जाता है due to which I only like resign and I only get out of the organization. So I feel this is some sort of fear or some sort of self-sabotaging behavior which I haven't really been able to understand. And I also get to hear like a lot from my parents also. But obviously, in zamane mein, one job is like a lifetime thing. And obviously, today that's not the case. But at least 2 years, 1 year, 2 years is the minimum that is ideal in the corporate world if you want to, grow or something. But in my case, somehow I've not been able to do that, and I honestly don't know why is that. It's whether I'm not suitable uh, for an atmosphere like that, or and ऐसा भी नहीं कि मेरा काम खराब है. Like my work is also good. Okay, people don't have an issue with my work. I find some reason to get out of the organization, and I will quit. So that is what has been happening, and yeah, that's pretty much it. I don't know if if this is an issue that you all can kind of understand, or if it's the right kind of issue to be discussed on this platform. But I thought I'll just put it across any which way. So No, yeah. no, that's okay. We can definitely discuss this particular issue. In fact, we have discussed similar issues in the past. Okay. So, what exactly happens, which brings you to the point where you feel that अभी और नहीं होगा, अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है. So, what exactly is happening? So I reach a point where initially I joined the organization and I'm all excited about it and बहुत अच्छा लगता है. I'm in awe of the place. I'm in awe of the people. सबके साथ तारीफ ही करती हूँ. मतलब even outside ऐसे कि oh my job is really good, this that. After a point, I just start feeling the exact opposite about the place. So in a previous organization, what happened was I started having issues with my manager. So he and the workload was also kind of bit much. It was in the event industry. So workload matlab it's like you're literally working day and night, day and night, day and night. And uh, so एक ऐसा point आ गया wherein I told them कि, this is not working out for me and I'm going to leave. I didn't even like give them an opportunity to sort of, they were like, can we do something? या कुछ हो सकता है. मैंने वो बोला मतलब I just completely said कि नहीं, it is not working out, and I kind of felt some sort of कि भाई मुझे मजदूर वाली फीलिंग आ रही थी. you know I just felt like breaking free. I didn't want and most people I think they cope with the same feeling. They know कि वो corporate मजदूर हैं and they're okay with it and they deal with it in a healthy way. But in my case, I don't see myself doing that. So this continuous, work stretching happened where I was working night and day and घर से भी काम करके I was living alone. So there was a lot of travel also. And then at one point I broke, when my manager asked for more. And I was like, no, I can't do this. And I directly went to the HR and I just said, I'm quitting. That is
what happened. And yeah, आगे से I had not, I just automatically felt कि I am not a good fit in this place. You know, people are workaholics and I don't want to be that way. I want some sort of balance in my life. And I got out of Hmm. that place. हो सकता है कि, maybe that was just a particular period when the business was, really flowing in and the work stretch was happening and शायद उस particular phase के बाद शायद ठीक हो जाता, but I have not survived that. And I've seen this pattern in other places of my life too, be it my marriage, though it was a difficult thing, but I think something similar happened there also. It just got too much for me and I burst and I did something which was not the right thing to do. And then things just went downhill from there. Rahi baat previous and this job situation, this has happened in the previous organization also, wherein some issue and then I wouldn't really last. But things were not always like this with me in my professional life. Like there was a phase wherein um, I was like the manager's favorite and I was doing really well, So this has been the trend since the past, I can say 3, 4 years or so, since 2019. 2020, I took a break because I got married and had a baby. But yeah, this wasn't always the case in my work life. Yeah, this is something that is happening recently. So yeah. Hmm. Hmm. And while leaving the jobs, Hmm. uh, what what thoughts are you getting? How मतलब कुछ ऐसा लगता है कि आगे से मतलब about the future, about how you're going to manage things. So anything, any kind of thoughts you get regarding that? No, I just feel free. I feel कि Independence Day आ गया, आजादी मिल गई है. That's how I feel. I feel and that feeling of freedom is so exhilarating कि I don't think कि भाई finances का क्या होगा, career पे कैसा hit पड़ेगा, resume पे कैसा hit होगा. I'm not thinking about all those things, at least during that particular phase. वो worries बाद में जब kick in होता है, then I start, doing something about my resume, applying for jobs again, which I'm doing now. I've kind of once again cleared interviews. मतलब मेरे मन में अभी यही है कि अब यहाँ पे भी मैं ऐसे थोड़े टाइम के लिए रह के अगर बाहर ही निकलूंगी then this is like a real big issue. Something somewhere is drastically wrong and I need to fix it. So that is why I thought I'll talk about it here. So the feeling while getting out is a sense of freedom and exhilaration. So it's so I had started seeing other people in the organization as corporate slaves, and I thought कि I don't want to be that way. I don't want to मुझे अगर इतनी मेहनत ही करनी है तो why should I do so much work and help someone else, increase their bank balance? If I'm putting in so many hours, why can't I do that for myself in a way wherein I grow that much? So these were the thoughts that kept coming to my mind. Yeah. Hmm. Hmm. Right. Right. Akarma, anything you wish to ask Natasha on this thing? Hmm. Hmm. I'll come straight to the point rather Okay. than beating around the bush. So, and if this is not correct, then we can beat around the bush and explore more. Okay. Okay. But I feel कि this problem that you are describing has to do with you not having a very good relationship with authority figures in your life. Yeah, that's kind of true. That's spot on. That's Hmm. spot on. Yeah. So, um, thought तो ठीक है ये वाला कि you can you can put that time and grow yourself and all that ये thought ठीक है लेकिन ये जिस space से आ रहा है Hmm. so imagine tomorrow when you grow big and then people who are joining you will do the same thing to you. So they are coming and learning everything and then going thinking कि why should I help her in becoming big? मैं अपने लिए ही कर लेती हूँ जो भी करना है.
तो ये जो थॉट है इसके ऊपर अभी हम फोकस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी healthy state of mind. तो मैं I would probably say कि first exploring the option की what is your rift with authority figures? Why you don't like Uh, authority figures? I just feel I don't get to be myself with authority figures. I don't like authority figures. I just feel they restrict my sense of freedom, my sense of self, my sense of individuality, and I don't get to be me. And that is my main problem with all authority figures. I don't like that. I mean, okay, their argument will be हम झाड़ को prune कर रहे हैं garden में ताकि झाड़ अच्छा दिखे. But नहीं होना है यार prune मुझे. I just want to be free. I want to be wild, and I don't want to be constantly criticized and um, belittled and insulted. I don't want to go through that. हाँ वो तो nobody wants to go through that. Yeah. However, the thing is कि when I am using the word authority figure and this is your interpretation of it, so which is showing कि आपका अभी जो perception है about authority figures, it is primarily in the negative zone. कि आपके पास कोई ऐसे examples ही नहीं है शायद authority figures के जिन्होंने आपको उस तरह से ना treat किया हो. क्योंकि when I'm saying authority figure, I am not talking about someone who is going to only suppress you, but that is what Okay. you are listening, Yeah. है ना? Yeah, that's what authority means in my head. मतलब authority Exactly, मतलब that is what authority means in your head. Correct, correct. और वही issue है, क्योंकि I am not denying that. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो पूरा सच नहीं है. तो वो half truth है. मानने को तैयार नहीं है. हाँ, माइंड मानने वो को तैयार नहीं क्योंकि रेफरेंस नहीं है ना. जी. दैट्स द प्रॉब्लम ना. रेफरेंस नहीं है तो जब तक कोई रेफरेंस नहीं होगा तब तक माइंड मानने को तैयार नहीं होगा. और रेफरेंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने कभी उसको मौका ही नहीं दिया उस रेफरेंस को क्रिएट करने का. चिकन एंड एग स्टोरी हो गई है बेसिकली. Yeah, sort of. आई एम श्योर कि शायद in early days you have created a negative belief system around authority figures which then created a biasing in terms of how you dealt with authority figures going forward in life. uh, और शायद लाइफ ने आपको मौका दिया होगा कोई अच्छे अथॉरिटी फिगर के साथ काम करने के लिए, बट वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो चश्मा अलग कलर का पहना हुआ है. See, जो अच्छे authority figures का experience हुआ वो अच्छा सिर्फ इसीलिए था because I was more of a people pleaser back then. You know, I was good at like I said in the earlier days, I was good at this thing. I was good at surviving in an organization and taking it and doing the right things. But after a point in time, I think I don't know for what reasons, but वो मेरा pattern break हो गया wherein or maybe I got tired. So things were good when I was keeping my manager happy in the earlier days of my career. You know, I managed to जो internship को crack कर लिया, job को crack कर लिया, promotion मिल गया. So I was there at some point in my time. So my experience is कि as long as I'm pleasing my manager, which I guess is the universal case, I will always get ahead. I'm saying the right things. I'm making the most of the opportunity in front of me and making it a point कि भाई नहीं अगर मेरे मैनेजर को ये पसंद है तो मैं उस हिसाब से बात करूँ, उस हिसाब से काम करूँ. So I was that person. It's just that somehow I'm not able to be that person anymore. वो तो अगेन एक नेगेटिव ही है इन द सेंस दैट you are putting a strategy in place to deal with those kinds. So I'm not talking about those authority figures who had to change you or you have to operate from an insecure attachment style to deal with them. So I'm talking about those who
who literally have the capacity to become a role model for you. तो Okay. इफ आई आस्क यू कि आपका कोई रोल मॉडल है इस समय, तो शायद नहीं होगा ना. नहीं. नहीं. हम्म. और लाइफ में रोल मॉडल की बहुत जरूरत होती है. टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको लाइफ में कहीं पहुंचना है, तो रोल मॉडल को जानना एंड अ गाइड, समवन यू कैन लुक अप टू, is very very important. Unless you understand this, you will not become a good role model for somebody else. And the thing is कि if you want to go in business yourself, that is fine, that is not a problem. लेकिन अगर आप सोलो एंटरप्रेन्योर बन के ही काम करना चाहते हो, अगर सोलो प्रैक्टिशनर बन के ही काम करना चाहते हो, तो दैट इज फाइन, बट दैट्स नॉट बिजनेस, दैट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉय ही बनना है तो वो एक अलग बात है, बट वो बिजनेस नहीं होता है. इट्स व्हाट वी कॉल कि बिजनेस इज समथिंग, अ जॉब इज समथिंग समबडी कैन फायर यू फ्रॉम. तो आपको वो लगा रहता है कि आपको कोई फायर कर सकता है. बट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज समथिंग वेयर यू कैन नेवर रिजाइन. एटलीस्ट आप जॉब से रिजाइन तो कर सकते हो, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से तो रिजाइन भी नहीं कर सकते. फायर नहीं करेगा आपको कोई, बट आप रिजाइन भी नहीं कर सकते, तो अटक गए. तो अगर इसको रियली में एक बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो आगे चल के आपको एक टीम लगने वाली है. शुरू में शायद आपके पास अफोर्डेबिलिटी ना रहे, फंड्स ना रहे टू हैव अ टीम एंड ऑल दैट, बट आगे चल के तो टीम होगी ही डेवलप. एंड वेदर यू लाइक इट और नॉट, दे विल लुक अप टू यू एज अ लीडर. ये तो इनएविटेबल है. आप चाहो या ना चाहो, आपके एम्प्लॉइज आपके अंडर जो काम करेंगे वो आपको एज अ लीडर ही देखेंगे. ये गिवन है, ये इनएविटेबल है. Now the only question is, the only choice you have is becoming a good leader or a bad leader. लीडर तो आप हो, राइट. चॉइस बस इतनी ही बचती है आपके पास कि आप उनके लिए अच्छे रोल मॉडल बनना चाहते हो या बुरे रोल मॉडल बनना चाहते हो. ऑब्वियसली अच्छा रोल मॉडल बनना चाहूंगी. आई वुड वांट माय टीम टू, मतलब मैं चाहूंगी कि वो भी ग्रो करे मेरे साथ. बिल्कुल. तो उसके लिए आपके पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए कि अच्छे का मतलब क्या होता है. आपके पास अभी सिर्फ बुरे बुरे का ही रेफरेंस है. एज यू सेड रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन आई हैव द इंटेंशन कि आई वुड वांट टू बी समवन दे लुक अप टू एंड आई वुड वांट टू हेल्प देम ग्रो. वो भी है. एंड आई वुड वांट टू बी एबल टू मैनेज the whole team properly. Would want to come up with effective solutions from time to time. वो तो है. बिल्कुल बिल्कुल. और वो तो करना ही पड़ेगा. लाइक ये अच्छा है कि यू मेक इट योर इंटेंशन. तो अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर अपनी इंटेंशन इस चीज को नहीं भी बनाओगे तो भी इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू. That's my KRA. इट इज योर केयर. करेक्ट. तो बेटर है कि इसको अपनी इंटेंशन ही बना लो, क्योंकि जो करना ही है जो चीज, उसको फिर मन से ही कर लो. बिल्कुल बिल्कुल. उससे तो बच सकते नहीं है. तो जिस चीज से बच नहीं सकते उसको अपना पैशन ही बना लो, उसको अपना केयर ही बना लो, या अपना इंटेंशन जो भी है उसको वही बना लो, कि मजबूरी में करने की बजाय तो हंसते हंसते कर लो, क्योंकि करना तो है ही. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके लिए आपको पहले अथॉरिटी फिगर का जो दूसरा एक्सट्रीम है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यू वांट देम टू सी यू दैट. पर आपको क्या है ना, क्योंकि आपने वो साइड देखी नहीं है ना, तो आप एक ना डर और इनसिक्योरिटी से हमेशा ऑपरेट करोगे कि मेरे सबऑर्डिनेट्स मुझको वैसा ना देखें, मैं वैसी नहीं अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहती, लाइक ऑल द अदर अथॉरिटी फिगर्स हैव ट्रीटेड मी, आई डोंट वांट. तो आप हमेशा ना डोंट की लैंग्वेज से आओगे कि मुझे वैसा नहीं, पर बनना कैसा है वो नहीं पता, वैसा नहीं बनना. That's right. हाँ. वो एज अ मदर भी मैं वही करती हूँ, एंड आई एम लाइक कॉन्शियस कि भाई मैं अपनी बेटी के साथ मुझे वैसा व्यवहार नहीं करना जैसा मेरे साथ हुआ. हाँ हाँ, क्योंकि वो क्लैरिटी है.
हाँ ये क्लैरिटी है कि क्या नहीं करना है, ये क्लैरिटी नहीं कि करना क्या है। जी। और क्या नहीं करना, ये क्लैरिटी भी अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि वो हो, लेकिन उससे ज्यादा क्लैरिटी इस चीज की भी जरूरत होती है लाइफ में आगे बढ़ना है कि करना क्या है, क्योंकि क्या नहीं करना है, दैट थिंग विल हेल्प यू टू अवॉइड mistakes, avoid risks. राइट। But you are stuck in one place. You are not moving anywhere. क्योंकि all you know is what to avoid, but you don't know what to do. या दोनों वी डोंट नो जरूरी व्हाट। हैं, राइट। दोनों जरूरी हैं। कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने कोई 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 एक डिश बनाई है, जो आपको ये पता है कि ये डिश में ये सब खराब है, ये सब पता है कि ये बेकार है, ये बेकार है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये डिश अच्छी जो है वो टेस्ट कैसी करती है, वो दिखती कैसी, क्योंकि कभी खाई नहीं, तो एक रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है कि एक्चुअली में मैं क्या एम क्या कर रही हाँ, एक बेंचमार्क नहीं किया ना, दिस ये हूँ, मुझे बेंचमार्क नहीं है कोई। हाँ, हाँ। हो सकता है आप उस बेंचमार्क तक ना पहुंचो, राइट, हो सकता है ना पहुंचो, हो सकता है कि वो आपने हमेशा, मान लो कि कद्दू की सब्जी है जो आपने हमेशा खाई है और वो आपको कभी पसंद नहीं आई है, चाहे कितने भी लोगों ने आपको बना के खिलाई हो, एंड देन कोई मिशलिन स्टार शेफ है, उसने कोई कद्दू की सब्जी बनाई है एंड यू से ओके दिस इज द बेस्ट, लाइक ये दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर ऑल माय लाइफ, but maybe you will never match that Michelin star chef's expertise, that level ever. पर आपको एटलीस्ट पता तो चला ना कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब, ये एक्चुअली में ये भी हो सकता है, मतलब ये कद्दू की सब्जी ऐसी भी टेस्ट कर सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ। तो अब आपका एक रास्ता खुला जिसके ऊपर आप अब चल सकते हो, चाहे आप वो पूरी वहां एंड तक ना पहुंचो, लेकिन उस रास्ते पे चल के जहां तक भी पहुंचोगे वो नेगेटिव से तो बेटर ही होगा ना। बिल्कुल। So you may meet some authority figures in your life who are really impressive people and all that, and you're really impressed by them कि ना this is it, like, and और शायद आपको वो बनने में बहुत टाइम लगे, that's okay, doesn't matter, पर आपके पास एक बेंचमार्क आ गया, आपको ये पता बिल्कुल। चल गया कि अथॉरिटी फिगर के बारे में जब आप बात करोगे किसी से या कुछ करोगे, तो अब आपके पास दोनों रेफरेंस पॉइंट है कि ये खराब वाले ऐसे दिखते हैं, अच्छे वाले ऐसे दिखते हैं, तो ओके। मेरे को ये खराब वाला ये नहीं बनना है, आई हैव क्लैरिटी अबाउट इट, और मुझे ये अच्छा वाला ये है, इसमें ये क्वालिटीज हैं, ऐसा बनना है, यू हैव क्लैरिटी अबाउट दैट ऑल्सो, यू हैव क्लैरिटी अबाउट बोथ, नाउ यू कैन डू। अभी अच्छे वाले की कोई क्लैरिटी नहीं है, तो पता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में किसमें बढ़ना है, तो ये पता है कि इस डायरेक्शन में तो नहीं जाना, ये मालूम है कि बुरे वाले की डायरेक्शन में नहीं जाना, ये क्लैरिटी है, तो इसलिए बस बैठे। So I have to be open to authority figures now. You have to be open to experiencing, you have to be open to experiencing different authority figures, let them, हाँ, और ये एक्सपेरिमेंट करने में हो सकता है आपको और भी बुरे अथॉरिटी फिगर्स भी आए, Okay. जितना आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया उससे भी ज्यादा बुरे आए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। Okay. बिना इस एक्सपेरिमेंट के आप वो वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको एक एक ऐसा रोल मॉडल मिले जो आपको लगे कि हाँ, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन, दिस। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको वैसा बनना है, इट्स नॉट अबाउट कि बिकमिंग समबडी एल्स, दैट्स नॉट व्हाट अ रोल मॉडल मीन्स, इट्स अबाउट द क्वालिटीज दैट यू लाइक। जो जो वो दूसरा इंसान है वो तो एक इंडिविजुअल है, जी। लेकिन हम उस इंडिविजुअल की को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसकी क्वालिटीज देख रहे हैं कि ओके दिस पर्सन is very authentic, this person is very congruent, this person is very honest, yeah, he's able to set healthy boundaries and he's able to be assertive and he's able to you know get people along, very emotionally intelligent and all that, आपने पर वो जो क्वालिटीज हैं वो इंसान अपने हिसाब से
एक्सप्रेस कर रहा है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको ये देखना है कि वो क्वालिटीज क्या हैं और वो क्वालिटीज आपको अब अपने हिसाब से एक्सप्रेस करनी। More like a तो ही reference point. हाँ More like a reference point. हाँ Fitting. मोर लाइक अ रेफरेंस पॉइंट दैट यू नो कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये है, दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो तो उसमें क्या रहेगा कि आपको आपको बार बार जब भी अथॉरिटी फिगर से एक दिक्कत, तो क्या होगा कि आप कहीं पे भी रहोगे ना, ये अथॉरिटी फिगर्स की वजह से यू विल ऑलवेज हिट अ वॉल, और फिर आपकी वहां ग्रोथ की लिमिट आ जाएगी, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इसके अलावा कि अब इसको यहां से जाओ, अब ये चेंज करो, क्योंकि यहां इसकी लिमिट आ चुकी है। जी. एंड व्हाट हैपेंस कि अनलेस यू आर in a place where you have प्लेस को भी छोड़ो, after a while this is just a natural thing that happens is after a while in corporate you reach a certain age and certain experience, जहाँ पे अब आपसे expectation होने लगेगी कि you start taking leadership roles। Right. I have reached that stage, and हाँ मैंने opportunity भी crack कर ली है. But I'm like almost on the verge of letting it go because I'm not एग्जैक्टली confident. हाँ यही कोर रीजन है उसका, दैट इज द थिंग, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट अनलेस यू क्रैक दिस कोड, क्योंकि सूनर और लेटर तो ये प्रॉब्लम आपके आगे आने ही वाली है। यू कैनॉट बी एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर एट वर्क फॉर एवर, Right. Right. सूनर और लेटर यू इट विल बी एक्सपेक्टेड ऑफ यू कि आप करो। और अगर आपको लग रहा है कि उससे बचने का बेस्ट तरीका है कि मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर लूं, तो देन यू आर मिस्टेकन। Thank you for letting me know, for showing me the big picture. I think वो जरूरी था जानना. हाँ हाँ, अगर इंडिविजुअली कुछ कुछ करना है और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर ही बनने रहना है और जस्ट एज अ सेल्फ एम्प्लॉय अगर काम करना है कि मेरे को अपने टाइम का और ज्यादा पैसा मिल जाए, बस इतना बहुत है, तो देन दैट्स डिफरेंट थिंग कि मुझे इस पचड़े में ही नहीं पड़ना, मुझे तो कोई टीम मैनेज नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना, आई जस्ट वांट टू बी एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। और अभी काम पे मैं ऐसी स्टेज पे आ गई हूँ जहाँ पे मुझे एक सर्टन सैलरी ही मिलेगी, अब इसके बाद तो आगे तो दिस इज व्हाट इज द करियर ऑप्शन, तो ये तो मेरे को करना नहीं है, तो देन बेस्ट इज कि मैं अपना कुछ खुद का ही स्टार्ट करती हूँ एंड आई जस्ट बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर थ्रू माय ओन सेटअप, और यहाँ पे अब मैं ज्यादा चार्ज कर सकता हूँ, दैट्स फाइन, देन दैट्स फाइन। लेकिन ये बस इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इससे डर के एक अल्टरनेट खोजने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि लाइफ हैज स्ट्रेंज वेज ऑफ ब्रिंगिंग दिस बैक टू यू इन डिफरेंट वेज। आज आपने ये तरीका निकाल लिया है तो कोई और तरीका लाइफ ढूंढ के निकाल लेगी आपके आगे फिर से ये प्रॉब्लम क्रिएट करने का, Yeah. जहां पे आपको वो अथॉरिटी फिगर्स वाले क्वेश्चन को फेस करना ही पड़ेगा। So I guess I तब तक would ये want. सेल्फ सैबोटाजिंग चलता रहेगा बेसिकली। Yeah. So I want to be able to uh, deal with this in a healthy way because मैंने भी यही रियलाइज किया कि जब तक मैंने कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम अवॉइड करी है वो पीछे आता ही रहता है, and at least आता ही after. रहेगा, और इनफैक्ट और जब दोबारा आएगा तो उसका लेवल और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। इट्स नॉट द सेम इंटेंसिटी, इट विल बी इवन मोर इंटेंस। पीछा नहीं छोड़ेगा वो जो लेसन हमको लर्न करना होता है वो तो लर्न करना होता है, वो पीछा नहीं छोड़ता है। तो लाइफ की ये गेम का सबसे बढ़िया रूल यही है कि यू कैन नॉट क्विट इट, यू कैन डिसाइड टू नॉट प्ले, नॉट प्ले इन द सेंस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्विटिंग एंड नॉट प्लेइंग। Okay. क्विटिंग का तो ऑप्शन ही नहीं है, नॉट प्लेइंग मतलब आप ऐसा नाराज होकर बैठ सकते हो कि नहीं मैं तो नहीं खेलूंगा, बट गेम से अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। तो और अनसब्सक्राइब भी मैं बहुत ग्रैंड लेवल पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि
क्विटिंग को अगर डेथ के एंगल से भी लेते हैं ना तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो क्विटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का क्विटिंग तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि देयर इज नो डेर्थ ऑफ टाइम एंड स्पेस इन दिस यूनिवर्स। हम वापस आते जाते हैं, गेम वहीं से स्टार्ट होती है, जो लेसन हमने छोड़े हैं वहीं से स्टार्ट होती इंटरेस्टिंगली यही चीज मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से अलग अलग सोर्सेज से ये सेम मैसेज आ रहा है। देयर इज नो एंड टू टाइम एंड स्पेस एंड द प्रॉब्लम्स अगर हम उससे भागेंगे तो keeps coming back to you. है। हाँ, बस लोगों के नाम चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएंगी। आपने आज ये जॉब छोड़ दिया, किसी और में चले जाओगे, थोड़े दिन नोवेल्टी रहेगी, यू विल फील लाइक अ ब्रेक। अच्छा, भी नई जगह है, थोड़ा नया काम है, नए लोग हैं, थोड़ा मिल रहे हैं, 3 महीने 6 महीने निकल गए, 6 महीने के बाद वापस से वही सेम प्रॉब्लम। And it will be more intense. Why it will be more intense? Because you yourself will feel the build up. ये हुए जा रहा है, मतलब ये कब मेरा पीछा छोड़ेगा। लास्ट जॉब में भी यही था, उससे पहले जॉब में भी यही था, उससे पहले दिस बिल्ड अप विल बिल्ड ऑन यू। So, is there a way to be able to deal with this effectively? हाँ, डेफिनेटली लाइक आई सेड कि इस चीज को देखने की जरूरत है, टू वेयर दिस इज अथॉरिटी फिगर इश्यूज कमिंग फ्रॉम। सो आई एम नॉट फुल्ली श्योर। आपने अभी तक हमारी कोई भी वर्कशॉप का कोई भी लेवल किया है अभी तक या नहीं किया है? हमने लेवल 3 किया था and I think you recommended that I do it 2-3 times now. लेवल 3 आपने कर लिया है, ओके। तो इसमें डिड यू पार्टिसिपेट इन दैट वन? हो गया था वो हीलिंग माइंड ब्लॉक्स? क्लीन माइंड ब्लॉक्स हो गया था एंड आपने मतलब मुझे बोला भी था कमेंट कि मैं 2-3 बार और करूँ वही। हाँ, लेकिन जब उस दिन आपने किया था तो उस दिन हुआ था, लाइक यू वर एबल टू पार्टिसिपेट इन इट या यू वर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, वो मैं पूछूं। I was able to participate in it. I was able to participate. ओके, ठीक है। तो फिर इसी पर्टिकुलर इशू के लिए करो कि नाउ व्हाट आई विल से इज कि रिफर टू योर जीएसपी नोट्स। अनस्टक की तो जरूरत नहीं है, जीएसपी के आपने नोट्स बनाए होंगे, एंड नोट्स में चेक करो कि एनीथिंग यू कैन फाइंड कि ये अथॉरिटी फिगर का जो इशू है ये कहां से आ रहा है। जी। तो वहां से स्टार्ट करो। अगर वहां पे वो नोट्स में नहीं मिल रहा आंसर, तो देन परहैप्स लुक एट द क्वेश्चंस अगेन। सो मे बी आंसर द क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम दिस एंगल। शायद क्वेश्चंस दोबारा से करने से आपको इस चीज की क्लैरिटी आए कि अथॉरिटी फिगर्स वाला कहां से आ रहा है, मदर वुंड है, फादर वुंड है, या कोई और चीज है, हाउ इट गॉट क्रिएटेड। Yeah, I think I'm aware how it got created. It's just that I haven't been able to fully let go of it. So when this previous job thing happened, it was before I did the workshop in January. So now I'll be again doing an office setup. पहले था, अब पता नहीं कैसा होगा, but वो चीज it does bother me, नहीं, ये लेकिन ऑफिस सेटअप का इशू है ही नहीं, आप इसको छोड़ दो। ये ऑफिस सेटअप में तो ये दिख रहा है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर वर्क एंड ऑफिस सेटअप। ये यहाँ पे तो सिर्फ आ रहा है बाहर, इट्स प्लेइंग आउट हियर, इट हैज बीन क्रिएटेड लॉन्ग बैक। तो कैन यू टेल मी कि was this is this coming from mother wound or father wound or both? It's coming Who was the from authority figure in your life that you didn't like? my mother. Your mother. But हाँ, I love my mother. I don't like her. I'm sorry of if it course, offends her. of course। तो उनके साथ भी आपका काफी रिफ्ट होता है, और यू फील लाइक कि वो आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, एंड ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर सेइंग दैट यू फील एट वर्क, it's the same complaint you would have for your mother as well. Yeah.
Yeah. So this is an intimidated child. So आपने healing mind blocks कब किया था? January 12th, sorry, January 12th. जनवरी में किया था, ठीक है। तो जनवरी में मैंने इंटिमिडेटेड चाइल्ड कवर किया था, आप जब किया था तो आपके साथ Intimidated child और से I don't know अगर आपने वो terminology use की, लेकिन इंटिमिडेटेड और डोमिनेटिंग चाइल्ड, डोमिनेटेड, बुलिंग, ओके, कोई बात नहीं। सो आई नो कि हमने जो लास्ट अभी फरवरी में किया है उसमें मैंने करा था, सो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट, सपोर्ट ग्रुप में उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो गो थ्रू दैट वन। उसमें द इंटिमिडेटेड चाइल्ड इज व्हाट यू नीड टू रिपेरेंट। आपकी आवाज थोड़ी मेरे को सुनाई देनी कम हो गई है। मैं पूछ रही थी कि मुझे लेवल 3 उनकी हीलिंग मैंड्रॉक्स बार बार करते रहना पड़ेगा कि जब तक ये इशू आ रहे हैं तब तक यू डू इट। सो हीलिंग माइंड ब्लॉक्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, लाइक आई सेड कि वो अभी हमने जो फेब में किया था 17 फेब या कुछ ऐसे हमने अभी किया था, जो अभी रिसेंटली किया है कुछ 1-2 वीक्स पहले, उसमें इंटिमिडेटेड चाइल्ड मैंने कवर किया है और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो एक्सेस इट, ऑल्दो यू ज्वाइंड इन जनवरी, बट ये फरवरी वाले की रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल है, सो यू कैन डू इट, राइट। तो प्लेलिस्ट का एक्सेस है आपको, प्लेलिस्ट में आप देखना, वहां पे जाके जो फरवरी की जो HMB में रीपेरेंटिंग वाला पार्ट है वो 2-2.5 घंटे का है, उसको कर लो दोबारा से, दैट्स ऑल। हाँ, तो फिर वो करके देखना, फिर बताना कैसा क्या रहा। जी तो 2.5 hours का वो पार्ट है, जस्ट मेक 2.5 hours space in your life, so do it uninterrupted। और हाँ, सो फेब का नाम का अवेलेबल है ना अभी, कब कर दी होगी ना अब तक तो अपलोड। Yeah. हाँ, सो इट्स देयर, तो जस्ट चेक द लिंक प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एंड यू डू इट एंड देन यू टेल अस। सपोर्ट ग्रुप में ही आप मैसेज डाल सकते हो कि हाउ वाज इट, देन वी कैन एक बार कर लो, फिर उसके बाद आगे की बात फिर उसके बाद करते हैं कि हो सकता है वो करने के बाद कुछ बात करने के लिए रह ही ना जाए, रहेगा तो बता देना। नो प्रॉब्लम। एक चीज मुझे ऐड करना था, सो दिस इज नॉट इन पर्टिकुलर विद योर केस नताशा, दैट अकर्मा हैज ऑलरेडी आंसर्ड, बट व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक फियर ऑफ अथॉरिटी, है ना, तो अगर जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लीडरशिप फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, नॉट जस्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंगल। तो अपनी अपनी लाइफ में भी ऑल आर लीडर्स, राइट, मतलब कहीं ना कहीं हमें वो लीडरशिप वाला रोल प्ले करना ही पड़ता है, और अगर हम कहीं भी ना भी करें तो अपने किड्स के सामने तो करना ही पड़ता है। आई मीन इट्स जस्ट एन इनहेरेंट पोजिशन और डेजिग्नेशन दैट यू गेट व्हेन यू हैव अ किड, राइट। सो जस्ट ये रेफरेंस पॉइंट लेके, आपका एग्जांपल लेके, मैं बस एज एन अवेयरनेस पॉइंट आई वांटेड टू शेयर दिस विद एवरीबॉडी कि क्या होता है कि जैसे कि जब हमें ये पर्टिकुलर इशू का हम एग्जांपल लेते हैं, फियर ऑफ अथॉरिटी, अभी लेट्स सपोज नताशा's mom was overcritical, right, and she developed this fear of authority. अब she is going the other way around, right, where she just uses her flight response to run away from the situation, right, which looks absolutely opposite to fear of authority. So maybe she is not critical of her child at all. She may be using very sweet words, loving words and everything,
सो जो रिस्पॉन्स है नताशा का एंड उनकी मदर का टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन माइट बी कंप्लीटली इन स्टार्क ऑपोजिट सेंसेस, but if Natasha does not change this particular thing, तो even if her child does not मतलब ऐसा कोई particular, she may not be able to word it, she may not be able to speak about it, but she would realize कि whenever tough situations come, run away. Because children are very good at reading these cues, right? तो हमारे साथ बहुत बार क्या होता है कि हीलिंग माइंड ब्लॉक्स में ऐसे लोग आते हैं एंड दे से कि माय पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली स्वीट एंड मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ तो ये भी नहीं हुआ, फिर भी कैसे? क्योंकि हमें सिर्फ ना वो नेगेटिव कोनोटेशन, हार्श कोनोटेशन में ये दिखता है कि व्हेन इट्स ओवर क्रिटिसिज्म देन ओनली वी कैन डेवलप अ फियर ऑफ अथॉरिटी. But when it's the other way around, when it's the completely stark opposite, so Natasha has chosen a path which is in her reaction to her child completely opposite to her mother, right? But the result is going to be the same, क्योंकि नताशा उससे भागने के लिए वो चीज कर रहे हैं कि वो uncomfortable होता है, right? And the child would not be able to handle it because she wouldn't know only, क्योंकि उसको वो चीज अब समझ में ही नहीं आएगी, वो क्योंकि उसने वो चीज कभी देखी ही नहीं है. So she would even be more worried about कि अब ये क्या हो गया, ऐसा भी होता है, ये भी होता है. She wouldn't know about it, right? So that's how these patterns play out in our life. So until we come to a point where we bring settlement, तब तक के outer reactions अलग हो सकते हैं, but it's अंदर का जो response है वो similar होता है. Yeah, so thank you so much for bringing that up, Natasha. Thank you. Thank you so much. Yeah, that's all I wanted to say. Anything else you want to ask Natasha, or can we move to the other person? That's about it. I think it's my time to do the needful. So once I'm done with that, then I post the interview. This is it for now. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, now anybody else? You can raise your hand and discuss your issue. Maushmi, anything you want to say? Yes, actually, I have a question for Akarma. So, regarding Natasha's case, but it is more from the coaching perspective. Can I, or in a different forum? Yeah, you can. Sure. Okay. So my question is, why did you pick up the case of the authority, whereas I was thinking it was more of a case of culture fitment, wherein the way, I mean, whatever she said, the case is her instability in any kind of job. I found it more like she is coming from the space of being simple, black and white. If it doesn't fit, then she will move. So when she was narrating her case, I thought of that, whereas you came up with the thing of authority, which she fully agreed. So what was the cue that you picked up when she was narrating a story that this was authority and not culture? Thank you. Good question. तो हमारी कोचिंग की क्लास भी हो रही है साथ के साथ. Okay. Yeah, this is a good question क्योंकि yeah, 2-3 things. One, that Natasha initially mentioned herself, self-sabotaging behavior. तो यूजुअली जब कोई मुझको इस तरह की चीजें बताते हैं तो मैं उन पे ज्यादा ध्यान, मतलब मैं आई डोंट टेक इट लाइक स्ट्रेट अवे कि मैं डीआईवाई एनालिसिस पे इतना बिलीव नहीं करता हूँ. हाउएवर, एज शी वाज डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन मोर, आई अग्रीड कि उसकी ये एनालिसिस करेक्ट, सेल्फ सैबोटाजिंग हो रही है. तो आई कुड सी दैट, एंड सेल्फ सैबोटाजिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड विद लैक ऑफ सिग्निफिकेंस. Lack of significance at work usually comes from having a problem with authority figure. Make sense? I'm processing it. Okay. Self-sabotaging comes from self-sabotage, again, lack of significance expresses this way. मतलब as you guys would have, मतलब I'm not talking about Natasha, I'm just taking this like extreme cases. आपने देखे होंगे कि लोग
कुछ वो होते हैं ना, ऐसे वो मजनू टाइप जो लोग होते हैं, जो मतलब दे विल commit suicide just to establish their significance, क्योंकि वो प्यार में इतना लैक ऑफ सिग्निफिकेंस हो रहा होता है कि they will go to that kind of extent, अपने आप को मतलब they will see कि ये करने पे मैं नोटिस होऊंगा, अब मुझे अब नोटिस करेंगे. And that's a self-sabotaging behavior. Self-sabotaging behavior comes from someone struggling to not find significance, someone struggling to be not seen. और वो यूजुअली वही होता है कि अथॉरिटी फिगर्स हैव बीन सप्रेसिंग देम बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी सिग्निफिकेंट. दिस इज अवर कोर नीड. We all want significance. We all want appreciation, recognition, acknowledgement. This is a core human need. बट जब अथॉरिटी फिगर्स उसको सप्रेस कर देते हैं और हमको वो दिख नहीं रहा होता है, तो फिर सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर स्टार्ट होता है, जहां पे हम एक वॉल हिट करते हैं कि यहाँ इससे ज्यादा मेरी दाल निकलने वाली है, अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा. Okay. And she also mentioned कि when we asked her that क्या हुआ, then she mentioned कि she had a rift with the manager, and she also very subtly used this language that it usually happens in the same way, or this is how it has been happening. So something like that. I don't remember the exact words, but उन्होंने start ही ये इस तरीके से किया था ना कि I had a rift with my manager and something like that. So there was a subtle cue over there कि वहां पे ये issue हो सकता है. Okay. हाँ, and the pattern that उन्होंने ये भी चीज बताई कि the solution that she brings out for it is that she leaves the organization. Right? She just goes on. And the third cue she gave when she said कि इससे बेटर तो ये है कि मैं खुद का ही कुछ क्यों नहीं कर लेती. मतलब अगर मुझे यही चीज फेस करनी है. That was another cue. Somebody struggling for significance when they want to go in business. Going in business is not an issue. Like you all know, I support that. हम तो खुद ही प्रोग्राम कर रहे हैं. We want more and more people to come in business and all that. But for the right reason. उसका reason गलत है. तो but उसका रीजन गलत नहीं है, उसके लिए गलत नहीं है. For Natasha it is fine because she's coming from that lack of significance. So I understand. मैं वो उस एंगल से गलत नहीं बोल रहा हूं. मैं एक अलग एंगल से गलत बोल रहा हूं कि वो हम उस एंगल से स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन फिर फंस जाते हैं आगे जाके, क्योंकि वो जिस रीजन से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए उससे नहीं स्टार्ट कर रहे. So starting on the wrong foot. तो बात तो बन जाएगी बिकॉज चाहे वो जिद है या वो गुस्सा है या उसकी वजह से कोई वो स्टेप लेके कर तो लेगा, लेकिन सस्टेनेबल नहीं, आगे चल के दिक्कत आएगी. Perfect. Thanks. Natasha, this analysis is helping you in any way? Yes, I mean, it's helping me in the sense of, I mean, I did like her question, cultural fit वाली बात. तो initially, ये thought मुझे भी आया था कि, is it really a cultural fit? Because the organization में सब लोग ही workaholics हैं. On the surface, it seemed that way, but this is the real issue. Yeah. Exactly. On surface, it seems that way, and it may be that. So the thing is कि हो सकता है कि आप इसके ऊपर थोड़ा काम करते भी तो, लेकिन वो सुपरफिशियल काम ही रहने वाला था. It's not the root cause. Yeah, it wasn't. So that's an area I have to keep working. Let's sort out. Yeah. Great. Mashmi, question answered? Yeah. Yes. Okay. Cool.
इससे मुझे एक चीज और याद आई, सो आई जस्ट add it for you, Natasha. So हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि a lot of times there are a few people who are very family centric. Then there are few people who are very friend centric. Few people who are very enemy centric. So anytime कोई उस एक segment wherever they are more centered to spouse centric हो सकता है, कोई self centered हो सकता है, ऐसे. और जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आई, अगर कोई मनी सेंटर्ड इंसान है और जैसे ही मनी की कोई प्रॉब्लम आई, देन एवरीथिंग दे आर गोइंग टू मेक अबाउट मनी, राइट? बट इस पर्टिकुलर चीज में ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब हम सेंटर्ड हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके, तो हम और जो बाकी सेगमेंट्स हैं, आवर लाइफ इज नॉट जस्ट for making money or for business, or it also has relationships, it has our health, all segments of health, it has our social life. So हम as human beings, हम इंसान तो एक हैं, but there are many roles that we are playing. लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें बहुत ज्यादा ही उसको इन्फ्लुएंस करने लग जाता है, देन वी मिस आउट द पॉइंट की और क्या क्या चीजें हैं जो इसके कारण से इम्पैक्ट हो रही हैं, राइट? सो ये चीज एक है, यू नीड टू, दैट इज अ रीजन व्हाई दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व. क्योंकि जैसे कोई इंसान है एनिमी सेंट्रिक, राइट? सो ऑल दैट दे विल बी टॉकिंग अबाउट कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे क्यों किया. जैसे कि एक लेडी से हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे, तो शी हैड सम रिफ्ट विद द प्रोफेसर इन हर कॉलेज, ठीक है, और उसका नहीं हो पा रहा था पीएचडी, and all she was talking about ki this guy, so as if that guy is the center of her life, right? So she was not the center of her life. She did not see this in a situation where she could see कि इस प्रॉब्लम को मुझे कितना किस परसेंटेज में, वेटेज में मुझे इसको इम्पोर्टेंस देना है. सो yeah, that just came to my mind कि along with this particular thing you also need to see कि इसका impact बाकी segments में क्या हो रहा है आपकी life में, and you see कि इसको कितना importance देना है, किस level का importance देना है. So just keeping these things into perspective while you make your decisions. Yeah. Yeah, I'll keep that in mind. I have a lot of thoughts on this particular issue, but I don't want to take the time of other people who would want to have the discussion. So, pretty much it. Thank you, Natasha. Who would like to go Thanks. next? We can take the next issue. Anybody who would wish to go, would like to go ahead, you can just raise your hand. Yes, Kavita. Hi everyone. Hello. Am I audible? Hello. Yes, you are. Yeah. So the challenge right now I'm facing is like being impatient and in setting boundaries. In setting boundaries, basically setting boundaries with my kids, you can say. Like they are no more kids, they both are adult now. And whenever I say no to them for something, I really feel guilty. That I'm mom, I should take care of this thing. And on the other hand, I understand, on the other hand, I think like they are now grown-ups, they are adult in themselves, they could take care of these small things by themselves. So this is a continuous dilemma going on in my head. Hmm. Hmm. Did anybody tell you in your life or showed to you that mothers have to do everything for their children all the time? If they don't, then they Yeah, are bad mothers. yeah, of course, everyone around me, my mom, my mom, myself, like uh, I have been taking psychiatric treatment from past almost an year now, and this was the issue which I noticed when last
few days back, my elder daughter, she was being hospitalized. And that was the time when I was really, it was a very bad trigger for me. And so I went for my session, and there it came up that I need to set the boundaries with my children. So I started doing small, small things, and my mom was there at my place to take care of us. And every time she was like, कि अरे वो तो पूछ ले उसको उसने दवाई ली है कि नहीं तू क्यों नहीं दे रही है आई वाज लाइक शी इज 26 मॉम शी कैन डू इट लेट हर डू इट बाय herself and it's been always she had been like you can say uh, a daughter always I think sees her mother as a role model in any way, whether it's like negative, ki, I shouldn't do it like this, or whether it's positive, ki, I should be like her only. So she was always Hmm. being a role model. Ki whatever she has done for us, it was great, and uh, giving all the sacrifices is necessary for being a good mother. So this was the whole definition I was being always told. But I think it was the first time that my uh, doctor told me कि no, this whole thing is coming out of uh, like you need to set boundaries with your kids also. There is no harm in saying no to them. But still, I am trying to do that. But still, there comes up a guilt कि uh, पता नहीं ठीक करा कि नहीं करा मैंने मतलब it's always I'm questioning myself on these acts. Hmm. Hmm. So, abhi, for the time being, the question that I'm going to ask you, थोड़ी देर के लिए just forget your kids, right? Hmm. Go to a point where you're younger. You're just growing up in your life. How did this behavior of mother impact you? Um, she was always a good mother for us. She was always a role model, a sacrificing woman who had done everything she could have done for raising up us as mm, good women, you can say, mm, How did this fitting impact us you in a negative way? uh, in a negative way. You can say I was like low in confidence. Hmm. Uh, I had, I never had that confidence that I can do everything by myself. I was always seeking a validation from everyone around me. And of course, she was the first one whose validation I was seeking every time. And then when I was married, I was seeking validation from everyone in my in-laws' house. So I think the negative was like I was never a self-confident person in any way. Hmm. Hmm. Right. Now extrapolate this and look at this while you were doing this with your children. No, I can understand. I'm making them like self-dependent. I am always like, uh, if I will do this for every time, when will they learn about this? But uh, वही सोच के I take that small small initiative कि नहीं मुझे नहीं करना do it yourself. But फिर Hmm. भी वो गिल्ट आता है कि यार कोई बात नहीं she was so busy मैं ही हाँ, कर देती तो क्योंकि मैं क्योंकि एक थोड़ी देर हाँ पहले आपने एक वर्ड यूज किया था हम्म, कि she was a good mother because she sacrificed so much for us. So yeah आपके दिमाग में एक गुडनेस अटैच हो गई है द वर्ड सैक्रिफाइस से, हम्म, राइट? इसीलिए आपको ये हम्म, गिल्टी फील होता है कि इफ आई एम नॉट सैक्रिफाइसिंग, इफ आई एम नॉट ओवर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन आई एम नॉट अ गुड मदर. सो इवन दो हम्म, कॉन्शियसली आपको ये चीज समझ में आ रही है कि आपको उनको इंडिपेंडेंट बनाना है थोड़ा बहुत, उनको ये सारी चीजें आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए, हम सबको, राइट? हम्म, हम सब कुछ नहीं कर सकते, बट जो चीजें कर सकते हैं वो तो आना ही चाहिए, नहीं तो डिपेंडेंट हो ही जाएंगे. आपको हम्म, समझ में आता है, बट द मोमेंट यू हैव टू टेक दैट एक्शन, आपको वो क्लिक हम्म, हो जाता है कि
my mother was a good mother because she sacrificed. Hmm. तो ये So now कनेक्शन how हमें to ब्रेक करना change, पड़ेगा. how to change this scenario now? Hmm. So, like Akarma was talking, in Natasha's case. Hmm. So, can you find some evidences in your life where, when you did something for your children, where they had to, take ownership and responsibility for things, how Hmm. did they feel about themselves? Sometimes they feel good, and sometimes they also feel like मतलब they would also say कि मम्मा यार आप कर देती ये उसमें क्या बात हो गई, could have done this, you were Hmm. sitting, especially if I'm sitting idle. तो if I am busy in something तो ठीक है, if I am sitting idle तो like अभी छोटी छोटी सी बात है कि I just told कि you are so grown up, you have your discharge summary, उसमें से देखो post hospitalization आपको क्या क्या medicines लेनी है and you take it yourself. Set alarms for that. Okay, I'm not going to remind you. Still, my mom was like, एक बार देख तो उसने दवाई ली है कि नहीं. Okay, I एक दो बार when she missed her medicine, she was like, मम्मा आपने भी तो याद नहीं दिलाया मेरे को. Because you had set all the alarms for that. So it's like it's not always कि they take it positively. It's like many times they also, I don't know whether they are thinking कि I'm being self-centered or Hmm. वो तो होगा ही ना, वो तो मतलब that's how it is. I mean, I would also probably say the same thing, but then later on you realize the importance of those things, right? So वो चीज तो है, लेकिन वो चीज का अंडरस्टैंडिंग हमें तो होना चाहिए as somebody who is a guiding principle for the kids and all that. So later on, when they have done all of those things, do you see that they're able to take more ownership and responsibility? But नहीं, एक हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये हो भी रहा है, अगर अगर ऐसा है भी तो इसमें इसमें आपको गलत लग क्या रहा है, पहले वो तो हाईलाइट करो. गलत क्या है इसमें अब तक जो जितनी भी बातें हुई गलत हैं उसमें क्या चीज है जिसको हमें सॉल्व करना है? गलत क्या है आपके एंगल से जिसका आप आंसर ढूंढ रहे हो? गलत वही है कि मुझे कॉन्शियसली मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ बाय सेइंग नो टू देम फॉर सर्टेन थिंग्स, ठीक है. हाँ, बट दैट्स अ पीपल प्लीजिंग इशू. गलत, हाँ गलत ये है कि उसके बाद मैं ना कह देती हूँ, उसके बाद मेरे अंदर वो गिल्ट क्यों आता है. पीपल प्लीजिंग आपके सामने तो डायरेक्ट एग्जांपल है, लाइक व्हाट मैं नताशा को जो बोल रहा था कि एक पॉइंट ऐसा आता है वेदर यू आर ओपनिंग योर बिजनेस और यू बिकम अ पेरेंट कि आप चाहो या ना चाहो यू आर अ लीडर. अब आपके पास बस एक ही चॉइस है कि अच्छा लीडर बनना है या बेकार लीडर बनना है. अनसब्सक्राइब तो नहीं कर सकती इस पोजीशन से, है ना? तो चॉइस बस यही है कि अच्छा लीडर बनना है या बुरा लीडर बनना है, यही चॉइस है. तो अब आपके पास तो डायरेक्ट एग्जांपल है कि एज शी इज हाईलाइटिंग कि आपकी मदर ने वो सेक्रीफाइस वाला जो आपका जो एसोसिएशन है उस वर्ड से, वही आपको ड्राइव कर रहा है इस समय. आगे चल के यही चीज आपकी बेटी भी यही नोट करेगी. तो व्हेन शी इज इनटू रिलेशनशिप एंड ऑल दैट शी विल आल्सो फील कि माय मदर हैज शोन दिस, ये ऐसे ही करना है. डिफरेंस क्या होने वाला है? कुछ नहीं डिफरेंस होने वाला, क्योंकि यू हैव शोन हर की ऐसे मैंने बाउंड्री तो सेट कर दी है, लेकिन मुझे अंदर से बड़ी गिल्ट फीलिंग हो रही है, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रही है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है एंड ऑल दैट. तो मैं कर रही हूँ लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है. तो यू आर नॉट मेकिंग इट अबाउट हर, यू आर मेकिंग इट अबाउट यू. इसमें उसकी ग्रोथ का कुछ है ही नहीं, इसमें आपका है. क्योंकि अगर एक अच्छा लीडर होगा ना तो वो ये देखेगा
कि हाँ तकलीफ हो रही है, बट होनी पड़ेगी ये तकलीफ। मतलब दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, अपनी खुद की नहीं, कि मुझे उसकी तकलीफ से मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो उसकी तकलीफ है ये जेन्युइन है। जेन्युइन जैसे कि समझो कि मेरे को कोई भारी चीज उठानी है, तो मुझे वो भारी चीज उठानी है तो मेरी बॉडी को तकलीफ होगी, पर वो जेन्युइन है। वो मैं कोई मजे लेने के लिए नहीं उनको तकलीफ दे रहा हूँ, या आप अपने बच्चों को मजे लेने के लिए तकलीफ नहीं दे रहे हो। तो आप ये समझ रहे हो कि हाँ ये इनको ये तकलीफ लग रही है क्योंकि इन्होंने ये किया नहीं है, तो ये होगी। तो इसमें आपको ना तो मजा आ रहा है ना ये आपको तकलीफ कोई दुख हो रहा है, इट्स यू आर न्यूट्रल बिकॉज यू नो इट इज रिक्वायर्ड। अब उनको तकलीफ हो रही है तो आपको सिर्फ देखना है उसको, आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें। यू कैन जस्ट एक्नॉलेज कि हाँ तुम ये भारी सामान उठाओगे तो तकलीफ होगी, आई नो, वो उठाना तो पड़ेगा, लेकिन कोई भी उठाएगा उसको तकलीफ होगी। तो तुमको तकलीफ हो रही है, लेकिन उठा के कर करके बॉडी की टॉलरेंस बढ़ती है, तो एक दिन आएगा जब नहीं तकलीफ होगी। लेकिन मैं करूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, और ये नेचुरल है, ये जेन्युइन है, इसमें कोई हम मजे लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ कि कोई भी चीज के लिए हम एफर्ट डालेंगे तो उसमें डिस्कम्फर्ट होगा। उस डिस्कम्फर्ट को आप एक्नॉलेज कर सकते हो, लेकिन उस डिस्कम्फर्ट से आप अफेक्ट हो रहे हो, ये इशू है ना। क्योंकि आपको इतना तो पता है ना कि ये जरूरी है, उसको पकड़ के रखो ना, ये जरूरी है, एंड आई एक्नॉलेज की तकलीफ होगी। और अगर ये दवाई मिस हो गई या कुछ हो गया तो शी हैज टू टेक, हाँ मतलब नो आई एम नॉट गोइंग टू रिमाइंड, सो अभी यू हैव टू रिमाइंड, यू हैव टू, आई, you cannot show your understanding everywhere like that. You cannot be over considerate for others. You can show your understanding in terms of acknowledgement, but not कि मैं कर देती हूँ, क्योंकि यही वो सीख रही है। कि दूसरे को तकलीफ ना हो इसके लिए मैं खुद पे तकलीफ ले लूं, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो तो हैं ही, पर मैं बाकियों की भी ढो रहा हूं फिर। और फिर लोग तो फायदा उठाते ही हैं, जब उनका काम बन रहा है, टुमारो शी विल गो इनटू अ रिलेशनशिप, शी विल गेट मैरिड एंड शी विल डू दैट, वो तो फायदा उठाएंगे ही लोग, क्योंकि वो तो कर रही है, उसको तकलीफ होगी, वो कंप्लेन करेगी, आपको कॉल करके बताएगी कि ये है वो है, तो आप भी कुछ नहीं उसको गाइड कर पाओगे, क्योंकि आप क्या गाइड करोगे, आप भी तो वैसे ही हो। राइट। आप बोलोगे कि हाँ ऐसा तो होता ही है, तो है ही, मैंने भी तो किया है, मैं भी तो करती थी, तुम जब मेरे को करते थे तब मैं करती थी। यू विल ओनली जस्ट से, यू विल नॉट बी एबल टू गाइड हर, एंड देन शी विल फील अलोन कि उसको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। फिर शायद वो आपसे थोड़े दिन के बाद बात भी करना बंद कर देगी इस बारे में, क्योंकि उसको ये लगेगा कि कुछ गाइडेंस तो मिल नहीं रही है, तो वो खुद से ही बस उसको उससे निकलने का भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और आपसे बात करके भी उसको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, आप पहुंचे ही नहीं वहां तक खुद ही कभी। Now I understood total, like whatever I'm doing, like I'm doing for her betterment, and I have to make peace with you her. have to hold on to that intention कि it is for her betterment, और इसमें तकलीफ होगी, and you can always acknowledge it, but you still, acknowledgement का मतलब नहीं है कि अब कूद पड़ो और खुद कर लो। Right. Reminding medicine is equal to like giving medicine by hand, right? Okay. Understood, like. और वो कर करके फिर टॉलरेंस या वो बिल्ड हो जाती है, वो फिर ओनरशिप आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर वो करना आ जाता है कि ये करना है, फिर वो खुद कर पाएगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा होगा तो शी विल ऑल्सो बी एबल टू पुट दैट हेल्दी बाउंड्री इन प्लेस कि हाँ मैं समझ रही हूँ, अगर कल को
उसका हस्बैंड इससे कुछ गुजर रहा है एंड ही इज, तो इनिशियल से माँ मैं समझ रही हूँ कि इसमें तुमको तकलीफ हो रही है, लेकिन करना तो तुमको ही पड़ेगा। नहीं तो पीपल विल जस्ट कीप पाइलिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन यू। उनको तो आराम से मिल रहा है ना, उनका तो कंफर्ट जोन बना हुआ है, तो बैठे रहेंगे फिर। तो दूसरे की तकलीफ से हमको मूव नहीं होना है, इन द सेंस कि हम ये नहीं हो रहे हैं, हम कोल्ड नहीं बन रहे हैं, लेकिन हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरा कुछ है नहीं करने के लिए। आई कैन ऑलवेज शो माई अंडरस्टैंडिंग बाय सेइंग कि हाँ तकलीफ तो होती है, और बट कर करके ये चीज इजी हो जाती है। एंड दिस इज द लेसन यू हैव टू गिव हर कि तुम्हारे साथ भी अगर कोई आगे ऐसा कुछ करे तो दिस इज द वे यू ऑल्सो पुट अ हेल्दी बाउंड्री इन प्लेस कि आई अंडरस्टैंड बट आई एम नॉट गोइंग टू जंप इन। करना तो तुमको ही पड़ेगा। Now I can see the bigger picture. It's not only about small things, it's a very bigger picture. Thank you so much. Thank you. No problem. Thank you, Kavita, for opening up and sharing it with us. Anybody else? ठीक है, अगर कुछ नहीं है और कोई इशू नहीं है to discuss, then we can wrap up today's call. I think we can. Cool. Thank you so much, Natasha, and thank you so much, Kavita. Thank you so much, Akarna and Anka, for giving such clarity. Thank you. Okay. Thank you. No Thank you so problem. much. Thanks. Great. And Kavita, for you, अगर you can also repeat the healing mind blocks वाला जो people pleasing वाला जो part है, you can also listen to that recording again and do that. Okay. Thank you. No problems. All right. Okay. Great. Good night, everyone. Thank you, everyone. Good night. Good night. Tata.